Hello and welcome to Ignited Minds. In this newspaper session today on 12th of August 2024, we will be discussing these news articles which are highlighted on your screen. As you can see, the first of all, this topmost headline which came up in today's newspaper was about the recent SEBI report highlighting the involvement of SEBI chief into the different stock exchange controversies and all other things like manipulations of the stocks and whatnot, short selling and all. We will also be discussing that what is actually short selling and how is this short selling being done at this level. Further, there is one more news article which talks about Tungabhadra River and Tungabhadra Dam. We'll see where does this river originate, what are its tributaries. Along with this, we'll also see the Mullaperiyar River because both of the dams, Mullaperiyar Dam, which is a 126-year-old dam, currently 127, this thing will be done. Tungabhadra Dam and Mullaperiyar Dam. What are the fears associated to this dam? Next, the Gotipua dancers. Who are these Gotipua dancers? और ये अभी इस पे एडिटोरियल क्यों आया है? What are the challenges with these dancers? फर्दर ये वायनाड लाइक इंसिडेंट जो है यही है जहाँ पे हम मुल्लापेरियार डिस्कशन करेंगे. इसके साथ साथ देयर आर टू एडिटोरियल्स. वन इज अबाउट लेफ्टिस्ट conundrum एंड अनदर इज अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन वाला एडिटोरियल थोड़ा बहुत डिस्कशन में आएगा, बट दिस लेफ्टिस्ट एंड सेंट्रिस्ट और लेफ्ट सेंट्रिस्ट conundrum, this is basically a PSIR related editorial. We will see how far we can go into this. Further, there is Jaishankar concluding 3 days visit to Maldives. So we will be dealing with respect to India Maldives relations in detail. Lastly, we will also see what is Perseid Meteor Show, which is currently you can see it with naked eyes if you are in the northern part of the world. Let's begin the discussion with a UPSC prelims PYQ. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के प्रीलिम्स में जो अभी हुआ 16 जून को. ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया दैट सी बहुत बार मैंने ये बताया है 80 क्लासेस में कि whenever this extreme statement comes, बट ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट सब चेंज हो चुके हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड्स चेंज हो चुके हैं. पहले एक्सट्रीम वर्ड क्या आता था? ओनली. ठीक है, बट दिस हैज चेंज्ड. इट से देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स. उपनिषद्स आर वास्ट बुक्स. ठीक है, ये फिलोसफिकल बुक्स है. फिलोसफी में अगर पैराबल नहीं होगा तो फिलोसफी किस काम की, और फिलोसफी फिलोसफी नहीं कहला पाएगी. These are philosophical discussions, and already UPSC has asked about Upanishads being the philosophical books in one of its PYQs. So this question was inspired by PYQs only. Upanishads were composed earlier than the Puranas. Although Puranas का नाम ही पुराना इसलिए है because they are the older ones, but Upanishads belong to the Vedas. ठीक है, ये वैदिक टाइम में बनाए गए थे, मतलब वैदिक टाइम पे कंपोज किए गए थे. तो इसका मतलब ये है उपनिषद्स आर कंपोज्ड, दे वेर कंपोज्ड अर्लियर देन पुरानास. पुरानास लेटर पीरियड में बनाए गए. इनको पुरानास इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर ओल्डर देन द अदर वेदंगास. ठीक है, विच आर एसोसिएटेड टेक्स्ट्स ऑफ द वेदास. देयरफॉर Upanishads are considered part of the Vedic literature and they were composed in later Vedic period, while as Puranas were composed much later in the early centuries of Common Era. ठीक है, ये बहुत पुरानी मतलब रिसेंट बात है. ठीक है, ऐसा नहीं 10-20 साल पहले, बट हाँ, वेदा से लेटर वेदा से बहुत टाइम के बाद ये बनाए गए थे पुरानास. बिगिनिंग विद द हिंडनबर्ग जजमेंट एंड बिगिनिंग विद दिस केस, इसमें अभी क्या आया है बिकॉज दिस हिंडनबर्ग जजमेंट हैज हाईलाइटेड, इट हैज रिसेंटली सेड दैट ये जो सेबी की चीफ है, ठीक है, शी मिस बख और मधाबी पूरी बख, द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, actually opposition is demanding a joint parliamentary committee investigation into the allegations.
Why? Because they are saying that this chief was also involved in the earlier case of Adani money siphoning scandal. So let's just understand what was this Adani money siphoning scandal और ये होता क्या है. Actual में it was in 2024 only that in January 2024 the Supreme Court of India concluded its judgment on this case of Hindenburg Research. Hindenburg is an organization. Basically, the organization is a US based organization. ये USA में है. इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में. इन्होंने रिपोर्ट निकाली, क्या बोला रिपोर्ट में कि एक्चुअल में अडानी की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के पीछे कुछ फ्रॉड्स हैं. जो फ्रॉड्स वो कहाँ पे करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं. ठीक है. अब वो फ्रॉड्स क्या है? वो फ्रॉड्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सेबी करेगा. इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेबी ही करेगा एंड सेबी की जो बाकी बॉडीज हैं वो करेंगी. हम ये इन्वेस्टिगेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे अबाउट दिस अडानी हिंडनबर्ग केस. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड सेबी टू यूटिलाइज इट्स इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी टू डिटरमाइन दिस Hindenburg's reports short selling actions because this might have violated laws or not, resulting in the investor harm. तो एक्चुअल में हुआ क्या? हिंडनबर्ग ने बोला दैट अडानी ग्रुप is doing short selling in the stocks. Therefore, there was a case about this in Supreme Court. But Supreme Court said कि SEBI will investigate these things. However, the petitioner argued for this thing कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. SEBI नहीं करेगा, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दो, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन पार्शियल होगी. बिकॉज सेबी इज द वन हु इज रेगुलेटिंग व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज. अब अगर खुद ही रेगुलेटर इन्वेस्टिगेट भी करेगा इन्हीं सब चीजों को, देन दिस विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस. तो इसलिए सेबी को ना दो, किसी और को दो. बट कोर्ट हाउएवर सेड that we will monitor the investigation. Rather, SEBI is a market regulator. It is not competent, or because the petitioner said कि SEBI जो है competent नहीं है, independent नहीं है to conduct this fair investigation. इसलिए आप किसी और को दो. बट कोर्ट ने बोला, और जो SEBI की तरफ से वकील थे उन्होंने बोला दैट नहीं, SEBI is competent of this. Therefore, we will handle the investigation on our own. So Supreme Court ruled in favor of the Adani Group and SEBI and said that there will not be any transfer of this case to any other group. Therefore, SEBI should conduct the investigation on its own. Because अगर हमने ये केस किसी और को दिया तो दिस विल चैलेंज द इंटेग्रिटी ऑफ सेबी, और सेबी की इंटेग्रिटी पे चैलेंज आएगा तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो खराब हो जाएगा. मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाएगा तो ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ खराब हो जाएगा. अब ये चीज करने के बाद अब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो सेबी ने बोला कि उतने सारे चार्जेस, मतलब इट्स नॉट दैट केस कि आप जो है चार्जेस लगाओ अडानी ग्रुप पे बहुत ही हाई लेवल के. बट अब सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और सेबी की इन्वेस्टिगेशन चलते चलते देर इज वन मोर ट्विस्ट इनटू दिस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हिंडनबर्ग एक और रिपोर्ट निकाल के लाती है और हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि नहीं, जो सेबी के चीफ थी, ठीक है, दिस मिस बैक, she is also involved into the this अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल. अब ये अडानी का स्कैंडल था क्या? असल में मनी साइफनिंग स्कैंडल था क्या? ये असल में स्कैंडल था शॉर्ट सेलिंग का. ठीक है. जो अभी तक एलिगेशंस लग रहे हैं. शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि एक इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर ABCD वो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक्स में. ही इन्वेस्ट इनटू स्टॉक सिक्योरिटी. पहले ये खरीद लेता है, बट लेटर ये जब मार्केट में स्कैरसिटी स्टार्ट होती है इस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल एक कंपनी अडानी ग्रुप जिसके शेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है, अब इसके शेयर्स मार्केट में है और इन शेयर्स को, ये जो शेयर्स है ये बिक रहे हैं मार्केट में. तो अडानी ग्रुप ने
किसी एक प्रॉक्सी को हायर कर लिया और बोला ये सारे शेयर्स खरीद लो। इस प्रॉक्सी ने अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीद लिए बहुत सारे। जो ही मार्केट में ये सेंटिमेंट पैदा हुआ, मार्केट में ये स्पेकुलेशन हुआ कि इसके शेयर जो है खत्म हो रहे हैं, तो सब लोग इसके शेयर खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इस शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। जो ही इसकी डिमांड बढ़ी, इसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ता जाएगा। देन बाय द डे एंड जो ही प्राइस ऊपर जाएगा बहुत ज्यादा, तो ये जो ये प्रॉक्सी थी, ये सेल आउट करेगी अपना सारा शेयर। क्योंकि अभी डिमांड हाई राइज पे है, डिमांड ऑलरेडी ऊपर चली गई है, तो ये सेल करना स्टार्ट करेगा। जो ही ये सेल करना स्टार्ट करेगा, ये सेलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी फिर कि ये डिमांड फुलफिल हो जाएगी एंड इसके सारे शेयर बिक जाएंगे जो कि इसने खरीदे सस्ते थे और बेचे इसने महंगे हैं। बस दैट्स इट। बिकॉज दीज आर सम ऑफ द tactics which are used in the stock market, and that is short selling. ठीक है? Because it, why does it sell or why does it buy? Because it's actually seeing कि फ्यूचर में इस बॉन्ड का, इस स्टॉक का, इस इक्विटी का होने क्या वाला है, ये इसका प्राइस गिरेगा या प्राइस उठेगा। अब ये जो चीज है, ये या तो डिलिबरेटली की जा सकती है, या तो ये मार्केट में नॉर्मली हो रही है, नॉर्मल सिचुएशंस में भी ये हो जाती है। ठीक है? हावेवर, ये शॉर्ट सेलिंग को रेगुलेट करने वाला कौन है हमारे पास? सेबी। ठीक है? सेबी देखता है कि क्या ऐसा हो सकता है मार्केट में या नहीं हो सकता, और कैसे कर सकते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, सेबी सेड कि इन्वेस्टर्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे विल बी अलाउड फॉर शॉर्ट सेलिंग। ठीक है? शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, यू कैन डू इट, बट यू कैन नॉट डू नेक्ड short selling. What is naked short selling? And it's not permitted in the domain of SEBI, and it's not permitted in our stock exchange. What is this short selling? ठीक है? अब ये short selling, naked short selling क्या होती है? Because all the investors are required to fulfill their duty of delivering securities during the settlement period. तो होता क्या है? सेटलमेंट पीरियड कितना है? T+2, है ना? ट्रांजैक्शन प्लस 2 days। अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? It occurs when the investor sells stocks or securities without actually arranging to borrow them or ensuring that they can be borrowed. Like इसने सेल आउट भी कर दिया बजाय इसके कि इसने खरीद लिया हो, खरीदने से पहले ही बेच भी दिया। That is naked short selling. Therefore, the institutional investors must disclose that जो उनने खरीदा है, उनने वो ट्रांजैक्शन कितने टाइम में की है, एंड शॉर्ट सेल उनने कितने टाइम में बनाया है। अगर वो ट्रेडिंग डे के एक दिन के अंदर अंदर ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हुई नहीं है। ठीक है? तो दैट इज द प्रॉब्लम जो इस शॉर्ट सेलिंग में हो रही है। एंड इसी शॉर्ट सेलिंग का शिकार यहाँ पे ये हिंडनबर्ग बता रही है किसको? अडानी ग्रुप को। यूपीएससी ने 2010 में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट द टर्म्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लाइक बियर। ठीक है? व्हाट इज बियर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बियर? ठीक है? बियर इज एन इन्वेस्टर जिसको लगता है कि प्राइस जो है किसी स्टॉक का, वो तुरंत गिरने वाला है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बेच देता हूं। ठीक है? तो इस बंदे को बियर बोलते हैं। और बुल किसको बोलते हैं? जिस बंदे को लगता है कि किसी स्टॉक का शेयर जो है वो, इस स्टॉक का, इस शेयर का जो प्राइस है वो उठने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है। तो जो ही उसको लगता है कि ये प्राइस जो है बढ़ने वाला है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, तो वो इसको खरीद लेता है। ठीक है? क्योंकि इसको पता होता है कि फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है, इसीलिए इसको बुल बोलते हैं और उसको बेयर बोलते हैं। बेयर इज समवन हु सेल्स ऑफ, बुल इज समवन हु बाइज। ठीक है? अब ये जो टर्म्स है, ये यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में पूछता रहता है। ठीक है? तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग या नेक्ड शॉर्ट सेलिंग भी एक ऐसी टर्म है जो आपको समझनी होगी और आपको याद रखनी होगी। नाउ कमिंग टू द तुंगभद्र रिवर एंड तुंगभद्र डैम। तुंगभद्रा डैम ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिस इज, तुंगभद्रा इज एक्चुअली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखो,
तुंगा भद्रा बनता है दो ट्रिब्यूटरी से, एक का नाम है तुंगा, दूसरा का नाम है भद्रा, और ये दोनों मिलके बनाते हैं तुंगा भद्रा रिवर। और ये मिलता है कृष्णा रिवर को कहाँ पे? कुरनूल एरिया में। यहां तक याद है? कृष्णा रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज है? कृष्णा रिवर निकलता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में है। महाबलेश्वर इज अ शिव ज्योतिर्लिंग। देर आर 12 शिव ज्योतिर्लिंग्स, महाबलेश्वर इज वन ऑफ देम। ठीक है। अब ये यहां से निकलता है कृष्णा रिवर, और ये जाता कहाँ है? ये जाता है सीधा बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। अब कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर कोयना, वीमा, पंचगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है। कृष्णा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर धोनी, भीमा, जो कि नॉर्दर्न हिल से निकलती है और रायचूर में जाके कृष्णा रिवर से मिलती है ऑन द लेफ्ट बैंक। इसके बाद डिंडी, मूसी, मुनेरी, ये तीन ट्रिब्यूटरीज है जो कृष्णा रिवर को यहाँ पे मिलती है। ठीक है। इसके बाद और ये विजयवाड़ा पे एक स्टीप डाउनवर्ड टर्न लेता है, एंड देन ये जाता है इधर अपना बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा बेसिन, ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आते हैं। और ये हमने इसकी ट्रिब्यूटरी सारी देख ली, तुंगभद्रा की भी और कृष्णा रिवर की भी। कृष्णा रिवर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा एंड गोदावरी। कृष्णा रिवर के ऊपर ही आपको नागार्जुना सागर डैम मिलेगा, जिसको श्रीसाइलम डैम भी बोला जाता है। इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। ठीक है। तुंगभद्रा रिवर का अभी पानी ऊपर चला गया, और तुंगभद्रा डैम का एक छोटा सा पार्ट वो डूब गया, लाइक वो टूट गया। ठीक है। वो बांध जो है वो टूट गया। पहली चीज ये था तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। बेसिकली तुंगभद्रा रिवर या तुंगभद्रा डैम, इसको बोला जाता है पंपा सागर। ये एक मल्टीपर्पज डैम है जो बनाया गया है होसापीट, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका। इट वॉज बिल्ट बाय डॉक्टर थिरुमलाई अयंगर इन 1953। तुंगभद्रा रिजर्वायर जो है, इसकी कैपेसिटी 101 टीएमसी की है, और इसका कैचमेंट एरिया अराउंड 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में है। 4 मेजर स्टेट्स हमने देखे। एंड इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये लाइफलाइन है 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स का जहां पे ड्रॉट बहुत ज्यादा आती है। These are the 6 drought prone districts of कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है। कर्नाटका में, बिकॉज कर्नाटका इज नोन एज दी, कर्नाटका में 3 एरियाज ऐसे हैं, बेलारी, कोप्पल एंड रायचूर, कर्नाटका में। एंड दीज एरियाज आर नोन एज द राइस बोल ऑफ कर्नाटका। एंड आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अनंतपुर, कुडापा एंड कुर्नूल, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिनके लिए तुंगभद्रा रिवर इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा रिवर को सेक्रेड भी माना जाता है लोकल माइथोलॉजी में। ठीक है। सेक्रेड इसलिए बिकॉज दिस फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड सेक्रेड इसको इसलिए माना जाता है बिकॉज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, दैट इज तुंगा एंड भद्रा, दिस रिवर इज, some tribes and some local people, they do worship it। ठीक है। फाइनली ये कृष्णा रिवर से मिलता है, एंड ये कृष्णा रिवर से मिलने के बाद फिर ये नीचे बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है। जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर की माइनर ट्रिब्यूटरीज आर तुंगा और भद्रा, ये दो तो हमने देख ली। इसके साथ साथ हरिद्रा, वेदवती, वारदा एंड कुमदावती, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो तुंगभद्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव दिस मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है। एंड सेंटर इज केरला,
a forum in Kerala is demanding that ये जो 129 साल पुराना डैम है, 129-year-old डैम, इसको जो है अब चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ये डैम कहीं से टूट जाए और ये वैसा ही हो जैसा वायनाड में हुआ, पूरे का पूरा विलेज चला गया और 200 से ऊपर की डेथ्स हो गई। तो वैसा इंसिडेंट यहाँ पे ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा आप जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही पुराना है, इसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 129 साल हो गए हैं। तो इसको अब आप थोड़ा बहुत इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है और दूसरा डैम बनाने की जरूरत है। ठीक है। और ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है। लेट्स डिस्कस अ बिट मोर अबाउट दिस मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम एक्चुअल में यहाँ पे लोकेटेड है केरला में। ठीक है। बट इसका पानी जाता है तमिलनाडु, ये वाईगई रिवर में जाता है। वाईगई रिवर आपका संगम लिटरेचर में भी मेंशन्ड है। ठीक है। अभी अगर इस मुल्ला पेरियार रिवर का जो ये मुल्ला पेरियार डैम का जो ये पानी है, ये अगर बहता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो वो कहाँ पे पड़ेगा? वो तमिलनाडु के ऊपर पड़ेगा। और अगर इस डैम का पानी ना छोड़ा गया तो तमिलनाडु में ड्रॉट आएगा, और अगर यहाँ से पानी ज्यादा गया तो तमिलनाडु में क्या होगा? फ्लड आएगा। ये डैम ऐसा है जो है तो केरला में, बट ये इफेक्ट करता है पूरा तमिलनाडु। और ये जो पानी है ये यहाँ से निकल के एक कैनाल के थ्रू जाता है और उसके बाद ये वाईगई डैम में जाता है, और वाईगई डैम के बाद ये वाईगई रिवर में जाता है। वाईगई डैम ये रिवर पे ही एक सिटी लोकेटेड है, मदुराई। ठीक है। मदुराई ये वो सिटी है जहाँ पे संगम लिटरेचर या संगम एज में ये संगम असेंबली हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है। यहीं पे संगम लिटरेचर कंपोज किया गया था। ठीक है। पेरियार रिवर, मुल्ला पेरियार इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके एक साइड में पेरियार रिवर बहता है। जो पेरियार रिवर कहाँ का है? केरला का रिवर है। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब समझना ये है कि ये जो डैम है ये एक्चुअल में अर्दन डैम है। ठीक है। ये अर्दन डैम है। इसमें जो मेजर स्ट्रक्चर्स है वो अर्दन मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका एक डैम यहाँ पे है, अर्दन डैम। दूसरा छोटा एक और डैम है। देन कम्स द लार्जर डैम, मुल्ला पेरियार डैम। और यहाँ से इसका एक स्लिपवे है जहाँ से थोड़ा बहुत पानी निकलता रहता है, बिकॉज अगर ज्यादा पानी हो गया तो वो निकलता रहता है स्लिपवे से। अगर आप इस स्ट्रक्चर का एज देखो तो इट्स करंटली अराउंड 129 ईयर ओल्ड। ठीक है। अब इशू यहाँ पे ये है कि मुल्ला पेरियार डैम में प्रॉब्लम क्या है? मुल्ला पेरियार डैम एक्चुअल में कंट्रोवर्सी में भी बहुत ज्यादा रहा है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। मैंने बोला ये इडुक्की रिजर्वायर पे है, और यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम पे ये पेरियार रिवर के, पेरियार जो है रिवर है, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है। और आपको इसी मुल्ला पेरियार डैम के इस साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा सुरुलियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड ये डैम इसलिए न्यूज में है, पहली क्योंकि इसको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है, बहुत पुराना हो गया है। दूसरा, ये डैम कंट्रोवर्सी में रहता है बिकॉज तमिलनाडु और केरला के बीच में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे पानी पे क्लेम्स आते हैं कि केरला हमें पानी ज्यादा नहीं दे रहा है, केरला हमें कम पानी दे रहा है, एंड अदर थिंग्स। बेसिकली इट वाज इन 1800s। ठीक है। इट वाज इन 1800s दैट यहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। और जो पहले केरला था, मतलब अभी का केरला है, ट्रेवनकोर तब था 1800 में। एंड उस टाइम पे द मद्रास प्रेसिडेंसी विच वाज गवर्नड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे एक लीज डीड साइन की गई 999 ईयर्स के लिए। 1886 में ये लीज डीड साइन की गई, 1886 में ये लीज डीड साइन की गई 999 ईयर्स में, जिसमें बोला गया कि देयर विल बी फुल राइट्स टू तमिलनाडु टू कंस्ट्रक्ट
एन इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन दिस लैंड। अब तमिलनाडु ने ये लैंड पे प्रोजेक्ट बना दिया। द डैम वाज बिल्ट टू डाइवर्ट ईस्टवर्ड्स अ पार्ट ऑफ दिस पेरियार रिवर। तो पेरियार रिवर का पानी यहां से निकल के, इस साइड से निकल के ये ईस्टवर्ड्स जाएगा और इस पूरे एरिया को इरिगेट करेगा। ठीक है। हावेवर इंडिपेंडेंस के बाद केरला गवर्नमेंट अलग हो गई, ट्रेवनकोर तमिलनाडु बन गया। एज अ रिजल्ट ये अग्रीमेंट 1970s में रिन्यू किया गया। ठीक है। ये अग्रीमेंट 1970s में रिन्यू किया गया। अब रिन्यूअल के बाद क्या बोला गया, दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज वाज गिवन राइट्स to the land and water from the dam as well as authority to develop hydropower project at this site। ठीक है। और तमिलनाडु जो है वो रेंट पे करेगा, इस डैम की रेंट वो पे करेगा किसको, केरला गवर्नमेंट को। अब ये डैम है कहाँ पे, ये डैम केरला की लैंड पे लोकेटेड है। चला कौन रहा है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु, अगर ये डैम टूट जाता है तो ये डैम नुकसान करेगा सबसे ज्यादा केरला को, ना कि तमिलनाडु को। क्योंकि तमिलनाडु में बस उतना ही पानी जाता है जितना अलाउ किया जाएगा। अगर लॉस होगा, यहाँ पे डिजास्टर होगा इस डैम का, तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट केरला को करेगा, ना कि तमिलनाडु। ठीक है। क्योंकि यहाँ से पानी एक चैनल के थ्रू जा रहा है बस। एक्चुअल पानी ये पेरियार रिवर का है और ये पानी बहेगा अपने नेचुरल कोर्स से, जहां से ये ऑलरेडी बह रहा था। ठीक है। ये अपना नेचुरल वे पकड़ेगा और उस सिचुएशन में केरला में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो केरला गवर्नमेंट हमेशा ये बोलती है कि ये जो एरिया है जिसको ये डैम को तमिलनाडु गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, इसके रेगुलेशन में इश्यूज है। ये हर साल होता है जब भी केरला में फ्लड्स आते हैं। ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया कि एक्चुअल में इशू क्या है और ये डैम को रिन्यूअल की जरूरत क्यों है। अभी इसको और ज्यादा नहीं खींचते हैं, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द फोक डांसेस। ठीक है। तो ये गोतीपुआ डांस एक फोक डांस है। ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बस समझना है। ये एक्चुअल में दीज आर बॉयज हु ड्रेस लाइक वुमन एंड देन दे परफॉर्म दिस डांस। इसीलिए इसको गोतीपुआ डांस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो हाईलाइटेड है, जो आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दो आर्टिस्ट की यहाँ पे केस स्टडी दी गई है। एक का नाम है श्रद्धानंद और दूसरे का नाम है गदाधर। ये दोनों बहुत अच्छे डांसर्स थे गोतीपुआ के। इन्होंने बाहर जाकर डांस किया एंड वंस दे केम बैक, उनके पास कोई एवेन्यू नहीं था कि वो डांस को छोड़ के कुछ और करे। बट डांस से उनका चला नहीं इनकम, जिसकी वजह से एक को मजदूरी करनी पड़ रही है और दूसरे को ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। दैट इज द कंडीशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो यही केस स्टडी आप अपने आंसर में, अपने एसे में यूज कर सकते हो। सॉरी। नेक्स्ट थिंग इज दीज गोतीपुआ डांसर्स, दे आर ट्रेडिशनली, एक्चुअली ये डांस बॉयज करते थे एंड दिस वाज बेसिकली अ बॉय ओनली डांस फ्रॉम द चाइल्डहुड जर्नी ऑफ द बॉय। वो अपने आप को डेडिकेट कर देता है, एक छोटा बच्चा, और वो यही डांस सीखता रहता है। ये उड़ीसा में होता है और अभी के टाइम पे ये डांस अखाड़ाज में होता है। ठीक है। इस डांस को करने के लिए जो प्लेस होती है, जो आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे हो, ठीक है, दिस एरिया जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको अखाड़ा बोलते हैं। दिस डांस एक्चुअली हैपन्स इन अ गुरु शिष्य परंपरा, जो गुरुकुल स्टाइल में चलता था वैसे ही ये चलता है। बस इतना ही हमें याद रखना है, अखाड़ा क्या होता है और गुरुकुल स्टाइल डांस कौन सा है। तो वो कौन सा डांस है, गोतीपुआ डांस है। ठीक है। इस डांस में इट इंक्लूड्स सिंगिंग, डांसिंग, योगा, एक्रोबैटिक्स। समझ में आया। एंड इट्स एक्चुअली द बॉय डांसर ऑर्गेनाइज्ड बाय न्यू ब्रिज इंडिया। ये एक आर्ट एग्जीबिशन है जिसके बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब इस डांस में इन्फ्लुएंस रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने वैष्णविज्म, कृष्णा डिवोशन को ज्यादा पॉपुलराइज किया और उस चीज से ये वैष्णवाइट्स, ठीक है, बिकॉज दिस गोतीपुआ डांसर्स दे आर फ्रॉम वैष्णविज्म, दीज वैष्णवाइट्स गॉट अ पुश और ये डांस ज्यादा थोड़ा पॉपुलर हो गया।
इसके साथ साथ देयर इज वन मोर टेम्पल डांस जिसको हम ओडिसी बोलते हैं, विच इज परफॉर्म्ड बाय देवदासीज एंड महारीज। तो ये भी याद रखना है कि ओडिसी डांस या जिसको हम टेम्पल डांस बोलते हैं वो देवदासी और महारीज करते हैं। ठीक है। उड़ीसा में एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कलाकार साहित्य योजना, जिसमें 2,000 रुपए का पेंशन मिलता है उन लोगों को जो ये आर्ट परफॉर्म करते हैं। बट आफ्टर अ सर्टन एज पेंशन मिलता है। ये इनको लाइवलीहुड नहीं है, ये इनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। ये इनको पेंशन मिलता है बहुत टाइम के बाद जब इनकी एज हो जाती है पेंशन वाली। समझ में आ गया? दिस इज गोतीपुआ डांस। गोतीपुआ डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है। इसके साथ साथ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देर आर सम मोर डांसेस एसोसिएटेड टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है। एक तो हमने गोतीपुआ देखा, दूसरा हमने देखा छाव। इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछा था एक ऑप्शन में छाव डांस। छाव डांस कहाँ का है? ये झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तीन जगह पे परफॉर्म किया जाता है। छाव डांस एक मार्शल डांस है जो ट्राइबल कम्युनिटीज करती है, इस एरिया की ट्राइबल कम्युनिटीज ये परफॉर्म करती है। छाव डांस ऑल्सो इन्वॉल्व्स मास्क, ये लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं, और इसके साथ साथ दे इन्वॉल्व दी एक्रोबैटिक मूवमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, यहां तक हो गया छाव डांस। दूसरा डांस है ब्रीता डांस। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया फोक डांसेस या फोक लिटरेचर के बारे में तो बस इतना ही पूछा जाएगा। वृता या वृता डांस वेस्ट बंगाल का है, बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। एक्चुअल में जो इन डेप्थ पूछी जाती है चीजें, दैट इज द क्लासिकल डांसेस, 8 क्लासिकल डांसेस, वो अलग कहानी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। वृता डांस हो गया। नेक्स्ट इज दल खली डांस। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और जो लास्ट में गोतीपुआ हमने देखा वो भी उड़ीसा का है। ये ईस्टर्न इंडिया के कुछ फोक डांसेस हैं। दिस एडिटोरियल आई एक्चुअली वांटेड टू हाईलाइट दिस थिंग, बस ताकि आप इसको यूज कर पाओ अपने आंसर्स में। इसको आप याद रख लेना बस। ये सबको ही पता है कि 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से पेरिस ओलंपिक्स से विनीश फोगाट, जो कि ऑलरेडी लाइक इस कंडीशन में थी कि वो गोल्ड जीत जाती, क्योंकि उन्होंने उस रेसलर को हराया जो ऑलरेडी अनडिफीटेबल था। ठीक है, जो उनकी कॉम्पोनेंट थी सेमीफाइनल्स में, वो थी जो आज तक हारी नहीं। बट ड्यू टू जस्ट अ माइनर ग्लिच ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनके पास प्रिसाइज न्यूट्रिशन नहीं था, टेलर एंड डाइटरी रिकमेंडेशंस, मतलब टेलर मेड न्यूट्रिशन कितना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वी परस्यू दैट देर, ऑल्दो उनके पास डॉक्टर्स थे, उनके पास हर एक चीज थी, उनके पास डाइटिशियन, उनके पास ट्रेनर, उनके हर एक चीज उनके पास अवेलेबल होती है, उनके ऊपर करोड़ों का खर्चा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देन ओनली दे कॉम्पीट एट सच लेवल्स। ठीक है, वो अलग चीज है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर आप इस एक केस को छोड़ दो और बाकी पूरे इंडिया को ले लो, देन वेयर इज आर न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी? वेयर डू वी स्टैंड इन आर न्यूट्रिशन? क्या हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्टडी हो, माइक्रोबायोम एंड बॉडी रेस्पॉन्सेज, कैलोरी इनटेक, ये सारी चीजों पे हम काम करें? ऐसा जो एक बिहेवियर है वो इंडियन सोसाइटी में नहीं है। दैट इज वाई इंडियन सोसाइटी हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिशन सिंस वेरी लॉन्ग। ठीक है, अगर आप देखो तो अंडर नरिशमेंट इंडिया में किस लेवल पे है? इट्स अराउंड अराउंड 16.6%, which is more than China's average and the world average. अंडर न्यूट्रिशन, आप समझो अंडर न्यूट्रिशन कितना ज्यादा है। ठीक है, देन पीपल हु आर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड इन इंडिया, दे आर अराउंड 74% people. ठीक है, who are unable to afford healthy food. Like last time we discussed an editorial talked about 350 rupees, 350 रुपए का खर्चा है हेल्दी फूड खाने का पर डे का। तो दिस इज द कंडीशन, 74% डू नॉट हैव इट। ठीक है,
तो अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट टू हैव such a level of nutrition problems. This editorial is not relevant to all of us but to the PSIR students. ये एडिटोरियल मैंने इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया ताकि आप ये समझो ये एडिटोरियल पे although I will be discussing it in detail in some other video on the channel, same channel only, but understand that this is not for all of us and we should avoid such editorials, ठीक है, from reading. However, we must understand the fact that what is leftist, what is rightist, what is left, what is right, and what is the recent most जो कि एक्चुअल में था नहीं, सेंट्रिस्ट conundrum in India. ठीक है, leftist, rightist and centrist. Do actually which party belong to what? Does BJP or the NDA belong to right, or does CPI belong to left, or you think that Congress belongs to centrist? ये डिबेट हमें समझनी होगी. ये ऑथर जो यहाँ पे है, शी इज एक्चुअली highlighting a case where Congress is portraying itself to be centrist, and she gives the ideas that why political parties adopt to pursue the domain of centricism in past and present, and what is actually the ideological purism which a party should not lose. These are concepts which are related to political science. ठीक है. However, this left and right debate, this was back then in the Parliament of Britain, that the people in the parliament who used to sit on the left side of the chamber and right side of the chamber were called as leftists and rightists. अब इनको ये इसलिए बोला गया, और लेफ्टिस्ट की एक पॉलिसी ऐसी है जो यूजुअली सोशलिज्म, इक्वालिटी एंड अदर राइट्स को लेके बात करते हैं, एंड दे बिलोंग टू, दे एक्चुअली talk about less state control, and they actually talk about not less state control but more state control, because they are socialists. They actually talk about the control of state over resources. ठीक है. While as rightists belong to, and they tend to be more inclined towards the capitalism, and sometimes the rightists are in the extremes of using their power for ensuring the power politics basically. ठीक है, rightists, as you can see, there were protests and there were you can see the protests from rightists in Britain which are currently going on. Last time we also saw Boris Johnson protests at this time also, his policies. In the recent past, we have also seen the formation of temple, okay, which was also something which aligns with the rightists ideologies. So these are some of the things which we will be discussing in detail later, but understand that what is the difference between left and right. Lastly, there is this editorial about India-Maldives relations, in which the after Mr. Moise or Muizu getting elected एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, उसके बाद से लेके अब तक अभी हमारा कोई डिप्लोमेटिक विजिट नहीं हुआ था. तो अभी मिस्टर जयशंकर वाज ऑन द फर्स्ट हाई लेवल ट्रिप टू दिस नेशन आफ्टर द रीसेंट कंट्रोवर्सी, जो उन्होंने बोला था दैट इंडिया शुड बी आउट एंड इंडिया शुड टेक इट्स आर्मी बैक. बट इफ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, तो वी हैव बीन गुड पार्टनर्स सिंस 1965, बिकॉज 1965 में ब्रिटिश ने इस आइलैंड को छोड़ दिया था एंड इंडिया established its diplomatic relations. One of the first countries which established its diplomatic and political relations with the nation or with the atoll nation. और इसके बाद 2008 में मालदीव्स में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है. ठीक है.
and Maldives started including the political, military, business and civil society in its government. Maldives इंडिया के लिए important क्यों है? Because there are 10 major reasons for India to keep Maldives close to it as a strategic, uh, you can say a reliable partner. Why? सबसे पहले ये एक अटॉल नेशन है, ठीक है, एंड इट हैज अराउंड 1200 कोरल आइलैंड्स. कितने? 1200 कोरल आइलैंड्स, विच इज की टू द शिपिंग लेन्स. यहाँ से बहुत सारा ट्रेड निकल के जाता है, ठीक है. जो ट्रेड आगे जाके मलक्का से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलता है, जो ट्रेड पूरा इंडियन ओशन में निकलता है, वो ट्रेड सारा यहाँ से होके जाता है, यहाँ से सारी शिप्स होके जाती है. And this can ensure uninterrupted energy supplies if China and Japan and India balances it out. Next, why is it important? Because China is keeping it dear to itself, and China has been investing heavily into it. और चाइना यहां से लेके गल्फ ऑफ एडन तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है. फर्दर, this is some of the one of the key players in providing the net security provider status to India in the Asian region. Because once such small island nations recognize India as net security provider, then only India can assume its position at the larger scale of international diplomatic forum. Next important point, that there is massive Chinese economic presence in Maldives, which India should counter by its own economic presence. ठीक है, इंडिया यहाँ से पीछे हट जाएगा तो चाइना अपना जमा लेगा वहां पे, ठीक है, तो वो नहीं होने देना है. Maldives is also a member of SAARC, एंड सार्क का अगर ये मेंबर है तो हमें सार्क के रिवाइवल के लिए इसका होना जरूरी है. एंड वंस Maldives being a Muslim country is on our side, Pakistan will be less in its bargaining power on the diplomatic tables. Therefore, India and Maldives relations, they are ethnic, they are linguistic, they are cultural relations way back since 1965 to 2008 and till 2023 we were developing these relations. और यहाँ पे relations आज के नहीं है, यहाँ पे relations 12th century से है. as we know Vajrayana Buddhism, since 12th century is there a linkage, a cultural linkage between India and Maldives. रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया एंड मालदीव्स, इंडिया के लिए मालदीव्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी प्रमोट्स पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन. इसके साथ साथ वाई इज इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स? ठीक है, सो इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर मालदीव्स. वाई इज इट सो? बिकॉज इंडिया कैन help Maldives to secure its essential supplies. In terms of rice, spices, fruits, vegetables, medicine, and all other things. Further, there are multiple higher education institutions which India has been running in Maldives. ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए भी इंडिया का होना जरूरी है मालदीव्स के लिए. नेक्स्ट, डिजास्टर असिस्टेंस. डिजास्टर असिस्टेंस के लिए भी जरूरी है इंडिया का होना. और रिसेंटली जब सुनामी आई थी तो इंडिया सेंट ड्रिंकिंग वाटर टू मालदीव्स. ठीक है, इसके साथ साथ कोविड-19 में भी हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर मालदीव्स को ऊपर रखा था और इसको प्रायोरिटाइज किया था एज अ रिलायबल पार्टनर, और इनको वैक्सीन भेजे थे. सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बिकॉज 1988 में मालदीव्स में एक कूप हुआ था. ठीक है, 1988 में मालदीव्स में एक कूप हुआ था जिसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, कंडक्टिंग द नेवल एक्सरसाइजेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मालदीव्स. ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया ऑपरेशन कैक्टस के साथ साथ एक्सरसाइज एक्यूवेरियन
और एक्वेरियन और एक्सरसाइज दोस्ती इसका नाम है, दोस्ती एंड एक का था, ये एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड मालदीव्स की आपस में होती है। इस साल यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पेपर में 2024 में एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में पूछा था। ठीक है, यहां तक हो गया एक्सरसाइज के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड, तो द ट्रेड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज इंडिया से जो टूरिज्म जाता है मालदीव्स, इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 11% ऑफ द टूरिज्म। ठीक है, in 2023, and our tourists get visa on arrival there. You also need to remember this fact that it's the 8 डिग्री चैनल जो इंडिया के मिनिकॉय जो लक्षद्वीप पार्ट है उसको सेपरेट करती है मालदीव से। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पे मिनिकॉय है विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ पे आ गई 8 डिग्री चैनल, एंड यहाँ पे आ गया हमारा मालदीव। ठीक है, दिस इज लक्षद्वीप। डन। रिसेंटली हमने देखा था प्रेसिडेंट मोइजू के आने के बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था इंडिया आउट प्लेटफॉर्म और इंडिया आउट कैंपेन, जो वहां के प्रेसिडेंट की एक स्ट्रैटेजी थी टू गेट इनटू द पावर। हाउएवर, दे गेव अस अ डेडलाइन ऑफ 15th मार्च 2024 टू विड्रॉ इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम दी मालदीव्स, बट जो कि एक अच्छी चीज नहीं हुई, जिससे हमारे रिलेशंस स्ट्रेन हो गए बिकॉज ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस अटॉल नेशन। However, अभी हमने देखा that this will be a good initiative for India to secure its neighborhood first policy, its Sagar vision, as was the statement released by Ministry of External Affairs because of the recent visit of our Minister of External Affairs, Mr. Jaishankar. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। लास्ट में देर इज दिस साइंस सेक्शन के नीचे लास्ट में एक और ये आर्टिकल था अबाउट this Perseid meteor show. What is this Perseid meteor show? Basically, these are the meteorites जो अर्थ के ऊपर से निकल रहे हैं। ठीक है, दे आर पासिंग बाई इन दी स्पेस। ठीक है, बट दे कैन बी विजिबल टू नेकेड आई ऑन 11th to 13th अगस्त। आपको ये याद रखना है परसीड मेटियोर शार क्या था। क्या ये मीटियोर्स अर्थ के ऊपर गिरे? नहीं, ये ऊपर से निकल गए। ठीक है, स्पेस में, आसमान में निकल गए। एक मतलब ये जा रहे हैं बस, दे आर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, जैसे अर्थ ट्रेवल कर रहा है। हाउएवर दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, और इनको कितना टाइम लगता है, और अगर आपको ये देखने हैं तो आप इनको अभी आज और कल देख सकते हो। आज 12th ऑफ द अगस्त है, आज देख सकते हो, शायद कल भी मिल जाए रात को 12 बजे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप रहते हो तो आपको ये दिख सकता है। अ मीटियोर शॉवर इज अ रेनिंग डाउन ऑफ मीटियोर over earth from space at a particular time of year. The Perseid meteors, basically this is a debris which was left behind by a comet जिसका नाम था स्विफ्ट टटल। उसका जो छोटा मोटा डेबरी पीछे रह गया था, दिस इज दैट डेबरी। ठीक है, ये सन को ऑर्बिट करता है, सन के अराउंड घूमता है, एंड इट टेक्स दिस डस्ट पार्टिकल्स, दिस डेबरी टेक्स 133 years to complete one cycle. Swift Turtle Comet was noticed there was an important chance it could strike the Earth or the Moon in mid 2126, बट अभी ये इसने किया नहीं है ऐसा, ये अर्थ पे गिरा नहीं था उस टाइम पे। द इम्पैक्ट कुड बी पावरफुल बिकॉज द कमेट इज 26 किलोमीटर वाइड। ठीक है, तो अब अगर ये ऐसा होता है कभी आगे फ्यूचर में 2126 में अगर ऐसा होता है तो देन देर साइंटिस्ट्स आर देयर टू टैकल इट, बट नथिंग एज सच। हमें जो याद रखना है, इट्स ओनली परसीड मीटियोर शोर, जिसमें देर आर अराउंड 60 मीटियोर्स विच पास इन द स्पेस ऑफ अर्थ अराउंड 60 मीटियोर्स पर आवर। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हो। डन।
With this, I wish you all the best. Thank you for connecting into this session.